Yes, good morning. Let us learn the physics, concave lens and some of the characteristics of the concave lens. Yesterday, we have already completed all the 6 characteristics of the convex lens and we have understood how we have to find out the the position of the images when an object is passing through the convex lenses. Today I am going to teach you its applications, where we'll use those convex lenses when the objects are placed in the different places. So according to that, its applications are also available. I'm going to teach its importance of the convex lens and importance of the concave lens and how and what are the characteristics related to the concave lens are there. Along with that, I am going to teach you about the sign conventions of the convex lens. साइन कन्वेंशन इन द सेंस कौन सा पार्ट तो आप लोग फिर के पॉजिटिव लेके जाएंगे, कौन सा हिस्सा नेगेटिव वाला पार्ट रहेगा, वो सब चीज़ के बारे में. टुमारो इज थर्सडे, विल प्रिपेयर अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ द फिजिक्स ओनली. नेक्स्ट डे आई एम थिंकिंग टुमारो आई विल प्रोवाइड टू यू biology. Tomorrow I will provide to you biology, but the next day I will provide to you the next topic. Next topic in the sense बाकी सब्जेक्ट के बारे में. लाइक फ्राइडे के दिन तो आप लोग का मैथ का एग्ज़ाम है, तो कल हम लोग रहेगा सिर्फ मैथ्स जो भी आप लोगों का डाउट है, क्वालिटी इक्वेशन, प्रॉब्लम्स बेस्ड अपन क्वालिटी इक्वेशन एंड जीएसटी से यदि कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो. उसके साथ साथ कल बायोलॉजी में ऑपरेट कर दूँगा हमारा ग्रुप में. बायोलॉजी एंड मैथ्स का एपी में वो सब चीज़ ऑपरेट कर दूँगा ग्रुप में. So please stay safe and do your works on time. Let us learn the concave lens and its parts. So guys, first criteria of the concave lens. When the object is at infinity, so you have to draw the concave lens first, then make a principal axis which is passing through the optical center O, having focus f1. इस साइड f2 रहेगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में इसका रहेगा f1 एंड देन 2 f2 इस तरफ एंड राइट साइड 2 f1. देन सिंस दिस टू लाइन्स यू कैन सी, सिंस द ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम infinity, so I have drawn these two are the parallel rays. As you all know, if a light ray is parallel to the principal axis after refraction, it is passing through focus or seems to pass through the focus point. Similarly here also ऐसे आप लोग ड्रॉ करोगे जैसे कि वो फोकस पॉइंट में मिलेगा, वैसे तरह लाइक दैट टू ड्रॉ. Diverge it, that means it seems to appear from or coming from the point focus, it seems to converge at the point focus up to. So this is the object when it is infinity. Where is the image formed? The image is formed at the focus on the same side. That's why same side information इसलिए वो क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा. वर्चुअल है मतलब इरेक्ट भी होगा, इरेक्ट है तो एंड बहुत छोटा भी है ना बच्चों, तो दिस इज डिमिनिश्ड. एग्ज़ाम में क्या क्या आता है जानते हो ना आप लोग, मैं बताता हूँ. तो एग्ज़ाम में क्या आता है कि द क्वेश्चन ऐसे आता रहता है, नेम द लेंस विच फॉर्म्स वर्चुअल इमेज विच इज़ डिमिनिश्ड. वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड सिर्फ कॉन्केव लेंस में ही हो सकता है. कॉन्वेक्स लेंस में भी एक वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो क्या होता है, दैट इज़ मैग्नीफाइड नॉट डिमिनिश्ड. सो ऑलवेज वर्चुअल में कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो बी केयरफुल, रीड द क्वेश्चन वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड. दूसरा रहा हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज समवेयर बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर. देखिए इस तरह लेंस ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा. लेट अस टेक दिस पॉइंट इज f2 पॉइंट, फोकस 2 इज 2 f2, is the f1 point, this is the f2 point, 2 f2 point, 2 f1. करने के बाद ऑब्जेक्ट ले जाइए समवेयर इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर. लेट अस टेक दिस इज a AB. So when a light ray is passing through
So when a light ray is moving parallel to the principal axis, it appears to come from the focus point, that is passing through the focus, or appears to come from a point called focus point. When it passes through the optical center, then it goes undeviated. Light ray is passing through the focus, it goes undeviated. Where is this both the refracted rays intersect, that is a very small object a prime b prime, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, it is forming the same side, it has formed in the same side, a prime b prime same side, that's why it looks like what children, same cell formation होगा तो virtual, erect भी है, छोटा भी है, diminished भी है. So these are the two criteria of the concave lens. Out of these two, this is important when the object is somewhere between infinity and optical center आता है एग्जामिनेशन में. ये थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग. नेक्स्ट बताते हैं हम लोग पोजीशन. जैसे मैं कल आप लोगों को 6 क्राइटेरियाज बताया था, यहाँ पे 6 क्राइटेरियाज भी है, मैं जैसे दिखाया हूँ टेबल में. आउट ऑफ द 6 क्राइटेरियाज, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि एट इन्फिनिटी वन द ऑब्जेक्ट इज दैट beyond 2f1, at 2f1, between f2 and 2f2, sorry f1 and 2f1, at f1 and between optical center and f1. So when application convex lens, देखिए convex lens when the object is at infinity, that lens is used as a burning glass. तो burning glass कैसे दिखता है, कौन सा है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को. Beyond 2f1, देखिए beyond 2f1, when the object is beyond 2f1, it is used in the camera lens. इट इज़ इफ एट 2f1 टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप में यूज़ होता है. बर्निंग ग्लास कैसे दिखता है, कैमरा लेंस आप लोग देखे भी होंगे टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप में. दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए देखिए बच्चों, ये रहा हमारा एग्जाम्पल. दिस इज लुक एन एग्जाम्पल ऑफ द बर्निंग ग्लास. सो वेयर इट इज़ यूज इन द कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करके एक बर्निंग ग्लास बना हुआ है. नेक्स्ट में आप लोग बताया कैमरा लेंस के बारे में. देखिए बहुत सारे कैमरा लेंसेज होते हैं ऑफ डिफरेंट मेगापिक्सल. नहीं लेंसेज का जो हमारे मेगापिक्सल के ऊपर डिपेंड करता है, क्लैरिटी के ऊपर. हम लोग जितना ज़्यादा दूर तक हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाहते हैं, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द लेंसेज. कैमरा लेंसेज ऐसे बहुत सारे टाइप का रहता है, आप लोग देखे भी होंगे वीडियो शूटिंग के टाइम पे भी. एंड सो ऑल्सो फॉर द कैमरा विच इज़ यूज्ड फॉर फोटोशूट के लिए यूज़ किया जाता है, एल्बम प्रिपरेशन करने के लिए. तो वो सब लेंसेज हाई क्वालिटी का रहता है एंड हाई पावर का रहता है. टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप might have seen where it uses 2 convex lenses. Though convex lens, 2 to 3 convex lenses are used for the astronomical research work. This is called terrestrial telescope. Now let me show other 3 applications of the convex lens. देखिए बच्चों, other 3 application in the sense between f2 and 2f2. When the object is lying between f1 and 2f1, फोकस 1 एंड सेकेंड फोकस के बीच, वैसा वाला प्रोजेक्टर में हमारे यूज होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर में, जैसे स्कूल में आप लोग इस्तेमाल करते हो. एंड एट f1 कॉलीमेटर और स्पेक्ट्रोमीटर. ये क्या है मैं बताता हूँ. बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीचों बीच जब ऑब्जेक्ट रहता है, वैसा वाला कन्वेक्स लेंस हमारे मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ होता है. आप लोग देखे भी होंगे. कहाँ पे ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस है दिखाता हूँ पहले, उसके बाद बताता हूँ. देखिए स्लाइड प्रोजेक्टर. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द स्लाइड प्रोजेक्टर्स विच इज़ अवेलेबल इवन इन स्कूल. यू माइट हैव सीन स्लाइड प्रोजेक्टर्स, देखे भी होंगे, ऑफ डिफरेंट पिक्सल्स. नेक्स्ट इट कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर. द स्पेक्ट्रोमीटर इज एक्चुअली यूज्ड टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. डिफरेंट प्रैक्टिकल फिजिक्स वर्क में ये कॉलीमेटर और स्पेक्ट्रोमीटर इज़ यूज्ड टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम्स. तो ये इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे कन्वेक्स लेंस का जिक्र किया गया. कन्वेक्स लेंस सो वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट फोकस एंड इमेज इज ऑब्टेन्ड एट इन्फिनिटी. बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, आप लोग जैसे बोला कि मैग्नीफाइंग ग्लास, आप लोग का पूरा एक्वेंटेड है मैग्नीफाइंग ग्लासेस के साथ. क्या कहाँ पे इसे इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग देखे होंगे
जो कि एज्ड पीपल्स होते हैं, जैसे घर पे या फिर आपका दादा दादी जी और दादाजी, नहीं तो ग्राना इन द सेंस लाइक नाना जी या फिर नानी माँ, तो वो लोग क्या करते हैं जब भी कोई भी चीज़, जैसे कि छोटे छोटा लेटर्स होते हैं, जैसे कि हमारा मेडिसिन का जो पैकेट होते हैं उसमें लिखा जाता है छोटा छोटा लेटर्स में, जिसमें मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट दिखाई नहीं देता क्लियर से। तो यूजिंग दिस मैग्नीफाइंग ग्लास यू कैन एबल टू सी दो स्मॉल लेटर्स ऑल्सो। So magnifying glasses are nothing but it is a single biconvex lens is used there, where the object has to be kept in between optical center and focus, then only you can see a large image. So this is the uses of the convex lens. Now let me show the two more uses of the concave lens. जैसे मैं अभी बता रहा था कि when the object is at infinity, when the object is at infinity, image is formed at the focus. Object is at infinity मतलब आप लोग देखे होंगे stars, movement of the stars, movement of the some of the astronomical heavenly bodies. This is being observed by the Galileo, so that's why it is named after him as a Galilean telescope. You might have seen this Galilean telescope. देखिए यहाँ पे ये Galilean telescope, कॉन्केव लेंस कॉल्ड आई पीस को दे के वो जाता है कन्वेक्स लेंस को, जहाँ पे कॉन्केव एंड कन्वेक्स दोनों लेंस का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। दिस इज़ द एंशिएंट टाइम्स फोकसिंग ऑन द स्टार्स, नेचर, गैलीलियोस टेलीस्कोप, ये सब वाला टेलीस्कोप गैलीलियो इस्तेमाल किया करते थे टू फोकस एंड टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द स्टार्स एज द एग्जाम्पल। नेक्स्ट आप लोग देखे होंगे शायद आपका बहुत सारे दोस्त जो कि लेंस इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ नहीं, वो वाला हमारा कॉन्केव लेंस होता है क्योंकि उसका पावर नेगेटिव में रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे मायोपिक आई, पर्टिकुलरली दोज पीपल्स कैन नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, उनको बोलते हैं नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। उनको सिर्फ पास वाला चीज़ दिखाई देता है, दूर का चीज़ दिखाई नहीं देता। जैसे छोटे बच्चे लोगों को ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता, ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ चीज़ दिखाई नहीं देता वहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ दे कैन नॉट एबल टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड फार डिस्टेंसेस, दिस कॉल्ड एज अ मायोपिक आई उसे बोलते हैं, जहाँ पे कि कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करने से, कॉन्केव लेंस ऑफ डेफिनेट फोकल लेंथ और डेफिनेट पावर is used to, so that the object will be focused on retina and the person can able to see the letters clearly. This is called the uses of the concave lens. देखिए बच्चों, इन एक कार्टेशियन प्लेन, जैसे कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले आगे जाके रिफ्लेक्शन एंड क्लास 9th पे भी आप लोग बताया था। देखिए इसे, ये कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉन्केव लेंस हो, in Cartesian plane, just like right side we are taking as x-axis, left side we are taking as x prime, and the top part we are taking as y-axis and the bottom part is y prime. तो आप लोग जानते हैं कि राइट साइड मेजरमेंट किया जाता है पॉजिटिव से, पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसे। तो ये भी इस तरफ भी जो भी चीज़ होगा, लाइक इस तरफ फोकस है f2 है तो वो भी पॉजिटिव फोकल लेंथ। तो राइट साइड में जो भी चीज़ आएगा वो पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ आएगा वो सब नेगेटिव है। ऊपर क्वालिटी ऑब्जेक्ट का लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव में होगा ऊपर की तरफ। इमेज यदि इन्वर्टेड हो गया, नीचे आ गया, तो उसे बोलते हैं हम लोग नेगेटिव पार्ट। ओके, तो जो भी उसका साइड रहेगा, जैसे कि सपोज इमेज इज़ फॉर्म्ड 2 सेंटीमीटर तो -2, ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म्ड एज 2 सेंटीमीटर देन +2 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। यदि ऑब्जेक्ट का दूरियाँ, ऑब्जेक्ट इज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, दैट मीन्स -15 सेंटीमीटर इज यू। तो यहाँ पे जो चीज़ होता है ये सन कन्वेंशन है, दिस इज सेम फॉर द कॉन्केव लेंस ऑल्सो। देन लेंस फार्मूला कम्स, लेंस फार्मूला इज 1/v - 1/e = 1/f। मैं यहाँ तक बताया हूँ, आप लोगों को मैं और भी डिटेल्स देने वाला हूँ कैसे आया ये फार्मूला एंड क्यों ये फार्मूला है और कौन सा फार्मूला क्यों नहीं है। चलो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, डिटेल्स प्रूफ एंड ऑल्सो अबाउट दिस लेंस फार्मूला। थैंक यू, हैव अ गुड डे।